We started our operations April 22 and probably in 4 years we are almost 8,000 crore, almost $1 billion. अब जब कैट 2 को देखते हैं there are more than 1300 AIFs managed by different fund managers. अब investor के now this becomes a very difficult ball game to understand कौन सा fund select करें और कौन सा fund manager select करें. All investors are not same. All investors have a different kind of an appetite for risk, a different kind of an appetite for reward. किस टाइप के इन्वेस्टर को कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए? AIF cannot be a T20. AIF is a test match. क्या आप 3 साल में IPO का हिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो सर. लर्न टू से नो. लाइफ में आगे बढ़ना ना बोल दो, बट समझो हाँ है. तो मेरा सिंपल अरेंजमेंट है, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आपका कंप्लेंस मुझे दो. So how do you select your hidden gems? Unlisted space में इतनी सारी companies हैं with so much of dynamic features that they're having. Every company is having a different DNA. So as a fund manager, what is your recipe of selecting the right company which is going to play out in the next 3 years for the investors? आपके पास क्या risk management strategy है कि मेरा पैसा वापस safe आ जाए या positive alpha देके आ जाए? स्टेटमेंट काफी हद तक सही है, बट आधा है. अनलिस्टेड कैन गिव यू बेटर रिटर्न देन द लिस्टेड प्रोवाइडेड Hello and welcome to Returns and Beyond, a podcast from Wealth One. We are into the space of PMS and AIF, and our endeavor is to bring to you the brightest and the best brains in this industry so that you are able to increase your wealth and you're able to increase your knowledge in this field. My name is Narendra Agarwal, and I am your anchor for today. Friends, today is a very special day because we have Mr. Nishad Khanolkar, who has been into this industry for 24 years as a wealth manager, worked in India, Asia, and Australia. He is the fund manager of Bharat Value Fund, which is managing close to 8,000 crores as assets under management. He's the director of Wealth Company and a brilliant human being. I'm sure that today is going to be a day of learning for all of us. So we welcome Mr. Nishad. Thank you so much for joining in here. And it's so much pleasure to have you here. My pleasure. Okay, so can we get started with our questions? Absolutely. Okay, so for our viewers, Nishad, we want to understand that as an investor, we see that there are primarily 3 buckets: mutual funds, portfolio management service, that is PMS, and alternate investment funds, that is AIF. Okay. When I see the growth of mutual funds, they have grown from 10 lakh crores to 80 lakh crores in the last 10 years, okay, which is close to 21% growth year on year. When I look at PMS, they've grown from 1 lakh crore to 8 lakh crores in last 10 years, close to 21% again. So similar growth pattern. But when I look at AIFs, they've grown from 27,000 crores to 15 lakh crores. That is close to 30% of growth. That means in this category, in the investment buckets, AIF stands as the fastest growing bucket. Yeah. So I want to understand as an investor, what should my portfolio look like? I should be placing my funds in mutual funds, PMS, AIF, or a combination of both, or combination of all 3. What should be my green flag for me to enter into any bucket? Excellent question, Naren. But before I answer your question, since this is a regulated fund, a small disclaimer. Whatever you and me are going to speak during the podcast should be taken only from the point of view of investors' education and awareness. Absolutely. So nothing to market beyond this. So first question, let me answer my personal way. So when I started my career, 2002, when I passed out my CA, of course your beginning, in my opinion, Naren, has to be with mutual fund. Because you start your career and minimum investment in mutual fund is 100 to 500 rupees. So that should be your beginning. That is how you should do start. I would suggest that as you start growing in your career, as you start accumulating the wealth and you feel that no, I want a personalized attention to my wealth. So technically I would say when you start crossing a AUM, liquid AUM, जिसमें घर गाड़ी बंगला नहीं आता है, of 4 CR, 5 CR, that time you can think of going to PMS. Because PMS provides you kind of a personalized environment. Though taxation point of view, mutual fund is slightly better as compared to PMS,
बिकॉज म्यूचुअल फंड में ओनली टैक्सेशन कम्स इफ यू सेल द यूनिट्स, वेर एज पीएमएस में पीएमएस के फंड मैनेजर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई बाय सेल किया तो उसके ऊपर टैक्सेशन आता है. सो जो डिप्लॉयबल सरप्लस रहता है वो हमेशा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास थोड़ा ज़्यादा होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट टैक्सेशन बेनिफिट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है. बट ऑफ कोर्स पीएमएस, एज आई पर्सनली फील दैट unless and until your AUM, liquid AUM, again, is not more than 3-4 CR, PMS should be looked only after that. AIF, as you rightly said, it has grown 30%. Needless to say, that is because of the probably the returns that AIF have given over a period of time. Because you know what happens, AIF can invest in such entities where PMS and mutual fund cannot invest. Classic example, AIF can straight away go and invest into unlisted. Can mutual fund can go and invest? Nahi. Can PMS go and invest? Not so directly. Discretionary नहीं कर सकता है, नॉन डिस्क्रिशनरी कर सकता है, सो रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. बट AIF कैन इन्वेस्ट. What I see, what I have seen the best of the wealth managers speaking about, Naren, is AIF minimum 1 crore है. Technically, it's a lock-in product. Though units are transferable, but it's a lock-in product. I would suggest, unless and until your liquid AUM is not in excess of 6 to 7 crore rupees, AIF should not be touched. That's my personal and honest opinion, though I know people are really willing to take the risk also. But that's how you should go at AIF, PMS and the mutual fund. So early stage mutual fund, as you grow, you can go towards the PMS, and as you go, you can go towards the AIF. So तीनों का basket होना, asset allocation is always and always important in your life. आज वर्ल्ड देखिए, गोल्ड ऊपर है, किसी ने इक्विटी ऊपर है, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो एसेट एलोकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन योर लाइफ. सो दैट मीन्स टेक्निकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि 6-7 करोड़ का जब हम एक एसेट एक्यूमुलेशन पे पहुंच जाते हैं एज एन इंडिविजुअल, लिक्विड एसेट पे पहुंच जाते हैं एज एन इंडिविजुअल, या दैट इज वेयर वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट AIF. नॉट नेसेसरली दैट वी जंप इनटू इट, बट ठीक है, दैट इज द स्वीट स्पॉट टू एंटर. दैट्स रिमेन्स माय पर्सनल ओपिनियन. ओके, तो अब ऐसा मान लेते हैं कि चलिए वी क्वालिफाई फॉर गेटिंग इनटू AIF एज अ इन्वेस्टर. ठीक है, अब जब हम AIF की बकेट को देखते हैं तो इसके अंदर 3 बकेट्स फिर से मिलती हैं हमारे को. दैट इज कैट 1, कैटेगरी 1, दैट इज स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल और मे बी ग्रोइंग बिजनेसेस. करेक्ट. Category 2, which we call as Cat 2, that is mainly unlisted space, private equities. Category 3 is listed space, also having hedges and derivatives. Correct. Complex trading, Correct. things that the fund managers do, right? Correct. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वो पड़ाव अपना पार कर लिया कि येस नाउ आई शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू AIF, तो मुझे कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मेरा किस तरह का DNA होना चाहिए? बिकॉज ऑल इन्वेस्टर्स आर नॉट सेम. ऑल इन्वेस्टर्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एपेटाइट फॉर रिस्क, अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एपेटाइट फॉर रिवॉर्ड. या सो किस टाइप के इन्वेस्टर को कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए? नरेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब कैटेगरी चूज करते हो लाइफ में हमेशा एंड गेम ध्यान में रखना, आप कितना टाइम तक उसको खींच सकते हो. इन माई फर्स्ट आंसर आई सेड AIF इज अ टाइम गेम. AIF कैनॉट बी अ T20. AIF is a test match. ठीक है. कैटेगरी 1 इज मोर लाइक अ स्टार्टअप. यू नाइसली सेड वेंचर कैपिटलिस्ट फंड उसमें आते हैं. उसमें टू डेवलप द इन्वेस्टिंग कंपनी जिसमें फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है, इट टेक्स स्लाइटली मोर टाइम. सो नॉर्मली आप कैट 1 देखोगे ना, 8 years 9 years के होराइजन के रहते हैं. इफ़ यू आर दैट मच होल्डिंग पीरियड, कैट 1 इज गुड. कमिंग बैक टू कैट 3, थोड़ा एडवांस म्यूचुअल फंड है. सो इफ़ यू थिंक दैट मार्केट अप डाउन हो जा सकता है, जहाँ पे स्पेशली डाउन मार्केट में म्यूचुअल फंड कैन नॉट टेक द लोअर रिस्क, वो शॉर्ट करने की पोजीशन कैट 3 रखता है. सो इफ़ यू थिंक दैट मार्केट इज गोइंग टू बिहेव अप एंड डाउन, तो डेफिनेटली आप कैट 3 देख सकते हो. कैट 3 का टेन्योर थोड़ा छोटा रहता है. बट इफ़ यू थिंक दैट मनी कैन बी मेड इन अनलिस्टेड, बिकॉज अल्टीमेटली हिडन जेम्स में पैसा है. दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज, हिडन जेम्स में पैसा है. सो एक अनलिस्टेड एनवायरनमेंट में आपको खेलना है तो थोड़ा उसी के साथ खेलो हु नोज द टर्म्स ऑफ द ट्रेड. सो अनलिस्टेड में खेलना है तो आपको कैट 2 चूज़ करना चाहिए, विच टेक्निकली आपको थोड़ी ग्रोन अप कंपनी मिलती है. अगेन कैट 2 में 2 हैं, डेट एंड इक्विटी. आई विल स्पीक मोर अबाउट द इक्विटी. इक्विटी में आपको अनलिस्टेड का ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है विथ अ लेयर ऑफ लिस्टेड.
तो जो अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वो कभी कभी आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को नहीं मिलते फॉर सम रीजन ऑफ अनदर, वो इनवेरिएबली फंड मैनेजर के पास रहते हैं। बिकॉज देखिए, म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज गिव यू एक्सपोजर टू द लिस्टेड एनवायरमेंट, ठीक है। तो वो आपका एनवायरमेंट बन गया, बिकॉज आप म्यूचुअल फंड के बाद ही एआईएफ में आ रहे हो ना, तो वहाँ तो आपका एक लिस्टेड का एटमॉस्फेयर बन चुका है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है। प्रोबेबली पीएमएस फंड मैनेजर ने आपके 20-25 स्टॉक में लिस्टेड का भी पोर्टफोलियो बना दिया। अब एआईएफ में आना है तो सर कैट 3 से अच्छा फिर आई वुड से आपका अनलिस्टेड का ही पोर्टफोलियो बनाना है, देन कैट 2 प्रोबेबली कैन बी सीन। बट कैट 3 के बारे में और एक बताऊंगा, एसआईएफ भी आ चुका है, और अब एसआईएफ और कैट 3 को एकदम माइन्यूटली स्टडी करोगे और आपका डेरिवेटिव इंटेंशन है, इफ़ योर इंटेंशन इज डेरिवेटिव, तो एसआईएफ में तो डेरिवेटिव के यूनिट टैक्सेशन है, तो वहाँ पे थोड़ा टैक्स बेनिफिट एसआईएफ को ज़्यादा मिलता है, प्लस 10 लाख की सीट है एज कम्पेयर टू कैट 3 में आपको 1 करोड़ की सीट है। सो बट डिफरेंस इतना है कि कैट 3 का फंड मैनेजर लीवरेज ले सकता है, सो बिकॉज ऑफ लीवरेज लेने से रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो लीवरेज, टेन्योर, टिकट साइज, इसमें आपको थोड़ा एक वेट करना पड़ता है कि कैट 3 बेटर है कि एसआईएफ बेटर है। बट अदरवाइज प्रॉपर अनलिस्टेड का गेम खेलना है तो नरेन आई गेस कैट 1 और कैट 2 वेट मोर देन एनीथिंग एल्स। बट कैट 1 में जैसे आपने बोला कि इट टेक्स 8 to 9 years एंड देन इट्स दैट रिस्की स्पेस ऑफ दैट स्टार्टअप, whether that startup is going to fire or not. So between the cat 1 and cat 2 always wins, because we've seen that अगर हम cat 2 का market देखें तो it's around 11 lakh crores. Within the AIF it's the maximum market. But लेकिन अगर हम fastest growing देखें तो cat 3 fastest growing है, right? So is this because of कि यहाँ पर the holding period is less and we are able to get or garner results in a shorter span of time? हो सकता है। कैट 3 में बेसिकली देखिए, कैट 3 इज़ अ वेल रिसर्च्ड आई वुड से, बिकॉज वो ज़्यादा पैसा लिस्टेड में लगा दे, सो वेल रिसर्च में लोगों को नॉलेज ज़्यादा आ जाता है, सो दैट इज़ द रीज़न पीपल गो फॉर कैट 3। बट कैट 2 इज़ ऑल्सो ग्रोइंग वेरी फास्टली। लुक एट माई फंड, वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस April 22 एंड प्रोबेबली इन 4 years वी आर ऑलमोस्ट 8,000 crore, ऑलमोस्ट $1 billion। सो कैट 2 में आपको इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आएगा, प्रोवाइडेड आप उनको एग्जिट मैकेनिज्म दिखाओगे। तो कैट 2 का सबसे बड़ा कैट 2 का पेन पॉइंट है फंड मैनेजर्स को एग्जिट आता है कि नहीं आता है। बट इफ़ यू कुड मैनेज टू शो द हाउ टू मेक एन एग्जिट, तो नरेन आई गेस कैट 2 इज अ सेफर बेट। ओके, चलिए अब ये समझ में आया कि AIF में हमें कब एंटर करना है, और AIF में एंटर करने के बाद हमारे को कैट 2 इज़ अ सेफर बेट एंड कैट 3, probably cat 2 and cat 3 depending on our appetite. Okay, अब जब cat 2 को देखते हैं, okay, there are more than 1,300 AIFs managed by different fund managers. Okay, अब investor के now this becomes a very difficult ball game to understand कौन सा fund select करें और कौन सा fund manager select करें. Okay, so मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए fund philosophy is as good as the fund manager's philosophy. Okay, so fund manager में हमें क्या red flag देखना है, क्या green flag देखना है as an investor, so that we can narrow down to out of 1,300 at least हम 5 तक तो narrow down कर सकें कि हाँ चलो इन 5 में से अब select करेंगे, right? I got your question. तो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता हूँ कि मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि आप गूगल करोगे ना, तो गूगल पे भी आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने दिया है कि अनलिस्टेड थियोरेटिकली, ओनली थियोरेटिकली नरेन, हैव अ टेंडेंसी टू गिव यू बेटर रिटर्न देन द लिस्टेड, बिकॉज वो एक अनआइडेंटिफाइड जेम है। ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही है, बट आधा है। अनलिस्टेड कैन गिव यू बेटर रिटर्न देन द लिस्टेड प्रोवाइडेड योर फंड मैनेजर नोज हाउ टू मेक एन एग्जिट। ये पूरा स्टेटमेंट है, अल्टीमेटली ये पूरा एग्जिट का गणित है। तो इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट कैट 2 अनलिस्टेड का फंड मैनेजर, मैं आपको सिंपल 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। आप फंड मैनेजर को 3 क्वेश्चन पूछो, एंड जो क्रिकेट में ना थर्ड अंपायर बोलते हैं पिच 3 लाइन, इम्पैक्ट 3 लाइन, हिटिंग स्टंप विकेट, तो हाथ खड़ा कर देता है। आपको वो तीनों के टिक मार्क रहेगा ना। नरेन रिटर्न तो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो तो कोई नहीं बता सकता है, बट एक थिंग एश्योर्ड है कि आपके लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके कैट 2 के फंड मैनेजर को आपको पूछना है कि भाई साहब आपने अपने लाइफ में कितने एग्जिट मारे। वेरी इंपॉर्टेंट नरेन, मैं बोलता हूँ भले ही वो, बिकॉज ये चक्रव्यूह है, वो निकाल के दे सकता है ना, बहुत स्मार्ट आदमी है। समटाइम्स मैं बोलता हूँ 100 के सामने 80 भी आया ना, वो 80 लेके आप 120 कमा सकते हो।
और वो नहीं आया ना तो प्रॉब्लम है, बिकॉज एक अनलिस्टेड का रिटर्न रूल है, जिस दिन आपका पैसा बैंक अकाउंट में आता ना वो सच्चा पैसा है, बिकॉज इफ़ यू एग्जिट मनी कम्स टू योर बैंक अकाउंट, इफ़ यू फेल टू एग्जिट दैट इज़ अ पेपर रिटर्न एंड दैट पेपर एंड टिश्यू पेपर हैज़ वन एंड द सेम वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन है आपने कितने एग्जिट मारे, उसके ऊपर पहले टिक मार्क बैठती है। देन सॉरी टू से पहले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंबल अप हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, आई जस्ट स्टॉप यू। तो कितने एग्जिट मारेगा क्या पैरामीटर है? सो मतलब वो आपको कितने एंट्री के बाद डज ही हैव द एबिलिटी टू एग्जिट। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? सर पासिंग मार्क मतलब मैं बोलता हूँ कि उसने 10-15 भी मार के दिखा है सर, वो करके दिखा सकते हैं। इट डिपेंड्स उसने किसने कंपनी में लगाया। वो 100 में लगा के यदि आपको 5 दे रहा है तो प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट वो जितना लगा के दे रहा है उसमें उसने पास्ट रिकॉर्ड में एग्जिट करके दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। दैट मीन्स 50% भी अगर एग्जिट कर रहा है बहुत तो ज़्यादा है सर, अच्छा। बिकॉज नॉर्मली टेंडेंसी है कि सर 30-40% में आपका प्रिंसिपल वापस आ जाता है। वो आप एक हिस्टोरिकल ग्राफ देखोगे तो। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट, एक होता है सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट। आप उसको पूछो कि भाई साहब मैं आपको जो पैसा दूंगा आपका आइडियोलॉजी क्या है, आप प्राइमरी करने वाले हो सेकेंडरी करने वाले हो। सर सेकेंडरी करोगे ना तो लिक्विडिटी क्रंच जब आती है ना तब थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सेकेंडरी क्रंच और प्राइमरी का डिफरेंस सिंपल है, आप प्राइमरी देते हो मतलब कंपनी को पैसा देते हो, ग्रोथ कैपिटल दे रहे हो, उसको रीसेल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग इट टू एन अनदर इन्वेस्टर करेक्ट जो पैसा लेके घर जाएगा। करेक्ट। क्लासिक एग्जांपल, आप पैसा क्यों लगाते हो? वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा? एक तो लिक्विडिटी से बढ़ता है जो आज नहीं है टुडेज मार्केट में, या तो बैलेंस शीट साइज इंप्रूव करना है। सर बैलेंस शीट साइज कैसे इंप्रूव करोगे? बैलेंस शीट साइज इंप्रूव मतलब क्या? रेवेन्यू बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, मार्जिन बढ़ाओ, सीईओ को लाओ, सीएफओ को लाओ। आपका स्टॉक सेकेंडरी में ट्रेड हो रहा है, प्रमोटर बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। सर जहां आपने प्राइमरी किया 70-80% भी प्राइमरी किया सर, वहां आपकी भले लिक्विडिटी नहीं है, बैलेंस शीट साइज तो ग्रो होती है सर। पैड ग्रो हो गया तो वैल्यूएशन तो ऊपर जाना ना, वो परमानेंट ग्रोथ है। आज जिस एग्जांपल देता हूं, आज तक एज ऑफ टुडे अक्रॉस ऑल द सीरीजेस मैंने जितना पैसा डिप्लॉय किया है नरेंद्र 85% के ऊपर मैंने प्राइमरी दिया हुआ है, मतलब मेरी बैलेंस शीट ग्रोथ होती है। लिक्विडिटी बियॉन्ड द पॉइंट फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है, ये वॉर हो गया, फंड मैनेजर क्या कर सकता है, बट एटलीस्ट बैलेंस शीट साइज ग्रो होती है। तो सेकंड क्वेश्चन प्राइमरी वाला है कि सेकेंडरी वाला है। एंड तीसरा सिंपल क्वेश्चन, एक हंसी मजाक में बोल देता हूँ कि बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स, मम्मी ने क्या बोला था, घोड़े पे पैसा मत लगाओ। घोड़ा कौन है सर? घोड़ा इक्विटी है, हम जॉकी पे पैसा लगाते हैं। जॉकी मतलब प्रमोटर, अल्टीमेटली वो मालिक है सर। सिंपल है कि वो प्रमोटर माइंडसेट को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो सर, सिंपल चीज़ देखो, वो कंपनी का प्रमोटर क्या कर रहा है लास्ट 3 साल में, उसका शेयर होल्डिंग यदि ऐसा है बहुत बढ़िया, इवन फ्लैट है बहुत बढ़िया, बट वो खुद निकल रहा है। एंड नरेन इफ यू आर एंटरिंग, मतलब जॉकी घोड़े से उतर रहे हो और अब घोड़ा गाड़ी में चढ़ रहे हो, अब सर घोड़े का एक्सीडेंट हो गया तो फंड मैनेजर को क्यों गाली दे रहे हो सर? सिंपल कंसेप्ट मैंने आपके इससे सिंपल भाषा में मैं नहीं समझा सकता हूँ सर। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट में 3 रूल है भाई साहब। फंड मैनेजर एग्जिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ कैपिटल को चेस कर रहा है कि सेकेंडरी को चेस कर रहा है, ग्रोथ कैपिटल इज ऑलवेज बेटर। एंड प्रमोटर को पकड़ रहा है कि सिर्फ थीम को पकड़ रहे हैं, दोनों को पकड़ना इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर को पकड़ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ थीम बेस नहीं कर सकते, ये लिस्टेड नहीं है, यहाँ पे आपको प्रमोटर को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के टिक मार्क है ना नरेन, आई थिंक यू आर रीजनेबली सेफ पेयर ऑफ तो हम सो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड के फेवर में बढ़ता जाता है। ऑफ कोर्स that's so insightful. I think आपकी जो statement है about the fund managers, this is going to play out for our viewers very nicely. Okay, moving forward to understand the wealth company and how you are creating your universe around you. Okay, तो मैं जब आपके कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था और जान रहा था आपको निशाद, इट रिमाइंडेड मी ऑफ एप्पल। ओके, सो एप्पल क्या करता है, मोबाइल फ़ोन लेके आता है, एप्पल वॉच लेके आता है, लैपटॉप लेके आता है और फिर अपना एक एप्पल इकोसिस्टम बनाता है जिससे कि कंज्यूमर को एक इमेंस बेनिफिट मिलता है एंड कंज्यूमर स्टिक्स विद दैट कंपनी, विद दैट प्रोडक्ट फॉर लाइफ. Okay, and that has been Apple's ideology. So something similar is your ecosystem that you have built, and you're in the process of improvising on it, right? So I want you to tell us what exactly is your Apple ecosystem. आपने बुलसेआई को हिट किया.
देखिए, एक मिथ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स एजुकेशन इसी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, मैं किसी को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हम हमेशा एक फंड मैनेजर को देख के पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग लगाते हैं नरेंद्र, एग्री विथ मी, बहुत सारे लोग लगाते हैं। मेरा क्वेश्चन सिंपल है इन्वेस्टर्स को, क्या अकेला फंड मैनेजर फंड सक्सेसफुल कर सकता है? आज आपने मुझे बिठाया बिकॉज आई थिंक आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ। आप मुझे पूछो कि मेरी टीम हटा दो, क्या मैं अकेला फंड रन कर सकता हूँ? 100% नो। इको सिस्टम, इंडिया क्रिकेट क्यों जीतती है? इको सिस्टम डेवलप हुई है। तो पिछले 3 एग्जांपल के ऊपर लेते हैं। हमारा सबसे जो ट्रेडिशनल ग्रुप है वो पेंटोमैथ ग्रुप है। सो पेंटोमैथ इज़ अ मर्चेंट बैंकर. Pentomath has done 119 IPOs in last 13 years. In fact, in the month of August 2025, we have done 3 mainboard IPOs in one single month. So that's a track record of Pentomath. मैं सीधा एग्जिट से ही चालू किया। दूसरा है हमारा वेल्थ कंपनी। नरेंद्र, वेल्थ कंपनी में 2 आर्म है। एक भारत वैल्यू फंड, विच इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ भारत वैल्यू फंड. आई एम द एम्प्लॉय नंबर 2. Miss Madhu Lunamath is the employee number 1. We started April 22 and close to 8,000 crore asset under engagement भारत वैल्यू फंड में आ गए। एट द सेम टाइम हमारे पास म्यूचुअल फंड भी है। ऑलमोस्ट अराउंड दिवाली 2025 वी लॉन्च अवर 4 NFO एंड वी आर गार्नर्ड क्लोज टू 2,500 करोड़ इन आवर म्यूचुअल फंड ऑल्सो। सो ये 2 है। इनके सिवाय आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट असित सी मेहता, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकिंग एंड रिसर्च हाउस इन इंडिया, जिसकी ओनर मिस दीना मैडम थी। सो पेंटोमैथ हैज़ इक्वल स्टेक इन टू, मोर देन 50% स्टेक इन टू असित सी मेहता ऑल्सो। सो हमारी लिस्टेड कंपनी को रिसर्च रिपोर्ट देना, ये सब असित सी मेहता करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव एट अ ग्रुप लेवल इन्वेस्टेड वेरी हेवीली इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। सो वो जो AI का डेवलपमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज़ वहाँ पे जो बोलते हैं ना ड्यू डिलिजेंस, अल्टीमेटली वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपके ग्रुप के बारे में बताया। आई थिंक आपने सेकंड क्वेश्चन जो बोला, सो थैंक्स टू कंपेयरिंग विद द एप्पल इकोसिस्टम, तो एप्पल को थोड़ा बाजू में रखते हैं, बट मैं मेरी इकोसिस्टम के बारे में बताता हूँ जी। तो समझिए आप एक प्रमोटर हो, तो मेरे फंड की थीम क्या है? सर, मेरे फंड की थीम है मैं 85% अनलिस्टेड में लगाता हूँ, और मुझे उस कंपनी को पैसा देना है नरेंद्र, जिसका विच इज़ लाइकली टू गो टू प्रोबेबिलिटी टू IPO वेरी सून। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं सर, पूरा का पूरा बग फंड मैनेजर के ऊपर डाल देते हैं, पूरा का पूरा बग प्रमोटर के ऊपर डाल देते हैं, प्रमोटर ही सब कुछ कर लेगा। सर ऐसा नहीं होता है, सर ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ। से सपोज एक डायपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी एक कंपनी है, अब उसको 3 साल में IPO को जाना है। सो हाउ डू आई हेल्प हिम एज एन इकोसिस्टम? देखो, मैंने ग्रोथ कैपिटल दिया, अभी आप प्रमोटर हो, लेट्स टेक योर एग्जांपल, आप प्रमोटर हो, आप जाके क्या करोगे, आपका जो धंधा है उसकी मशीनरी लेके आओगे, इंडिया से लाओगे, जापान से लाओगे, कोरिया से लाओगे, जहाँ से अच्छी मिलती है वहाँ लाओगे, आपका प्रोडक्शन बढ़ा। सर जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है नरेंद्र, आपका पहला क्वेश्चन आएगा, अरे माल बढ़ गया, बेचूँ किसको? इतना ईजी नहीं है नरेंद्र बेचना। अब मेरा जो एनालिटिकल ऐप है लीडजेन, वो आपको डेटा देगा, बॉम्बे में बेचना है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, कैलकाटा में बेचना है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, दुबई में एक्सपोर्ट करना है ये डिस्ट्रीब्यूटर। तो मेरे लीडजेन ने आपको डेटा दिया। अब पूरा का पूरा डेटा आपके CFO या परचेस मैनेजर के गले में डंप कर दूँ और बोलो माल बेच, वो नहीं बेच पाएगा। कौन सा डेटा अच्छा है, कौन सा डेटा बुरा है, ये भी बोलना इंपॉर्टेंट है। तो Analyst.ai अगेन मेरा होम ग्रोन एनालिटिकल ऐप है, वो आपको एग्जैक्टली बताता है, डो नॉट वर्क विद दिस गाय बिकॉज ही इज़ अ प्रोबेबली GST डिफॉल्टर, डो नॉट वर्क विद दिस गाय, ही हैज़ अ क्रेडिट हिस्ट्री इशू। तो आपको एक एनालाइज करके प्रॉपर डेटा मिला। सो मैंने आपको क्या क्या दिया सर? मैंने सबसे पहले आपको प्राइमरी पैसा दिया, ग्रोथ कैपिटल दिया, जिससे आपने मशीनरी लाई। सेकंड, लीड्स ने आपको डेटा दिया टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। तीसरा, Analyst.ai ने कौन सा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सा बुरा डिस्ट्रीब्यूटर है, विच विल हेल्प यू इन टेकिंग द क्रेडिट रिस्क ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर, वो हो गया। ऑफ कोर्स पेंटोमैथ विल टेक्निकली हेल्प ऑल द इन्वेस्टिंग कंपनीज इन क्लियरिंग योर कंप्लायंसेस, बिकॉज अल्टीमेटली कंप्लायंसेस क्लियर नहीं है तो आपका प्रोस्पेक्टस से भी अप्रूव ही नहीं कर सकते हैं। एंड असित सी मेहता बिंग द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, IPO में आपको मर्चेंट बैंकर होने के नाते आपको म्यूचुअल फंड एंकर इन्वेस्टर्स भी लाने पड़ते हैं, विच इज़ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड बैंक। सो आई गिव यू वन स्टॉप शॉप। व्हेन आई लुक एट यू, मेरा आपसे अरेंजमेंट सिंपल है। देखो, व्हेन आई लुक एट यू, मैं एक सिंपल पैरामीटर में डालता हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। क्या आप 3 साल में IPO का हिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो सर, लर्न टू से नो। लाइफ में आगे बढ़ने ना बोल दो, बट समझो हाँ है नरेंद्र। तो मेरा सिंपल अरेंजमेंट है, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आपका कंप्लेंस मुझे दो। एज अ प्रमोटर आज से लेके अगले 3 साल तक आपके 3 काम हैं। पहला, या तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, दूसरा या तो धंधा बढ़ाओ,
बेचो मतलब, या तीसरा मैनेजमेंट करो, आपके एम्प्लॉय को मैनेज करो। सर इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। साथ में काम करना रहता है, सब कुछ आप नहीं कर सकते। वो थोड़ा एक परसेप्शन का इश्यू होता है, बहुत लोगों को लगता है कि प्रमोटर ही सब कुछ करेगा। नहीं सर, प्रमोटर सब कुछ नहीं कर सकते। अब एक इकोसिस्टम दो जिससे प्रमोटर भी मेरे पास जल्दी आते हैं, जिससे मेरा डिप्लॉयमेंट भी फास्ट होता है, और एक तरीके से एक चैनलाइज वे में आपको पता है आपका काम क्या है, मुझे पता है मेरा काम क्या है, एंड वी आर पार्टनर्स फॉर नेक्स्ट 3 years। तो वो काफ़ी ईजी पड़ता है। सो दैट्स माई इकोसिस्टम। So for the promoter, you basically are an Apple, where you are giving multiple things under a single roof, and you're saying कि आपका रन अराउंड मैंने ख़त्म कर दिया, करेक्ट अब आप जाइए सिर्फ बिजनेस कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए, Correct. राइट? एंड नाउ लेट मी टेक केयर ऑफ ऑल द अदर एस्पेक्ट्स फॉर यू टू गो टू IPO. करेक्ट Correct? करेक्ट So point taken so far. Now let's move a step forward. Okay? और ये समझते हैं कि एक कंपनी है जो IPOable है in next 3 years, which has all the intent, which has all the raw material ready for this. But at the same time we see that अगर हम कुछ फंड्स देखें तो उनका MOIC will be 10x. ओके, और कुछ का देखें तो दे आर फेसिंग illiquid problems, they are not able to get exits. Okay, they're stuck with the wrong companies who are had the intent of having an IPO but नहीं, IPO तक नहीं पहुंच पा रही हैं, number 1. Okay, number 2, अगर वो IPO पे पहुंच भी गई तो they are trading below their listing price. Okay, that's the problem number 2. In between somewhere things go wrong with the company and वो ड्यू डिलिजेंस में, कंप्लायंसेस में कहीं ना कहीं फॉल आउट कर जाते, ठीक है? सो हाउ डू यू सिलेक्ट योर हिडन जेम्स? आप कैसे सिलेक्ट करते हो? अनलिस्टेड स्पेस में इतनी सारी कंपनीज हैं विद सो मच ऑफ डायनेमिक फीचर्स दैट दे हैविंग, एवरी कंपनी इज हैविंग अ डिफरेंट DNA. So as a fund manager, what is your recipe of selecting the right company which is going to play out in the next 3 years for the investors of your fund? हमारा एक सिलेक्शन पैरामीटर्स हैं। तो व्हेन वी टेक्निकली डू द डील विद द प्रमोटर, बहुत सारे इट्स लाइक ए गिव एंड टेक। आप प्रमोटर हो, मैं आपके कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट पे निगोशिएशन होगा, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ छोड़ना पड़ता है। बट वन क्लॉज है ना सर, इफ़ आई एम गिविंग यू मनी यू विल हैव टू डू योर IPO इन 30 months। ये आज तक हमने जितनी कंपनी में पैसा लगाना है, सो कोई 30 months का 36 हो सकता है, दैट इज़ ओके विद मी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, ये अगेन T20 नहीं है। एंड एज अ फंड मैनेजर आई हैव राइट टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर विच मे और मे नॉट बी Pento Mehta, दैट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर। देयर आर इंस्टेंसेज वे आर अपॉइंटेड नॉन Pento Mehta एज अ मर्चेंट बैंकर्स ऑल्सो बिकॉज दे आर बेटर इन सम केसेस। सो पॉइंट है कि डे 1 को एग्जिट क्लियर करो। आज लिखो, टुडे यू राइट डाउन दैट 30 or 36 months you want to go for IPO। सेकंड, ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव मनी धंधा और बंदा देख के। देखो फ्लाइट जब लैंड होती है एक्सीडेंट होते हैं बिकॉज लॉन्ग रनवे नहीं है। लॉन्ग रनवे मतलब प्रमोटर का लॉन्ग व्यू है कि नहीं है, कहाँ से मिलेगा? नंबर 1, क्या प्रमोटर अपनी इक्विटी बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। क्या प्रमोटर का सेकंड जनरेशन धंधा ज्वाइन कर चुका है? गुड। इज इट अ ग्रोन अप कंपनी? सर मैं वो 5 क्रेडेंशियल देता हूँ। एक समझो 500,000 करोड़ का रेवेन्यू नरेंद्र, कंपनी के पास या तो एसेट बैक है या ऑर्डर्स है अगले 2-3 साल की। तीसरा, प्रमोटर के पास सब्सटेंशियल इक्विटी है। चौथा, हिज सेकंड जनरेशन हैज जॉइन द बिजनेसेस। पांचवा, ही इज प्रॉफिटेबल, एंड सिक्स्थ, ही इज वेल कंप्लाइड। इफ़ यू हैव दिस 6 क्रेडेंशियल, नरेंद्र कंपनी फेल नहीं हो सकती। सिंपल क्रेडेंशियल है ये, एकदम किताबों की बात कर रहा हूँ। आज आप मतलब मेरी भी इन्वेस्टिंग कंपनी में देखोगे तो इसमें से मैक्सिमम क्रेडेंशियल आपको मिलने हैं। और हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, यदि प्रमोटर अपनी इक्विटी नहीं बेच रहा है, उसका सेकंड जनरेशन बिजनेस में आ चुका है, वो लंबा खेल रहा है, वहाँ पे गाड़ी डिले हो सकती है फॉर सम रीज़न, बट डिरेल नहीं हो सकती है। सो आपने एक पैरामीटर बोला एसेट बैक, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय एसेट बैक्ड कंपनी? तो एसेट बैक को मैं ऑर्डर बुक भी बोल देता हूँ। तो आज आप हमारा पोर्टफोलियो देखोगे तो एसेट बैक मतलब या तो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, समथिंग इज़ देयर टू बैक यू अप। अब ये बोलने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझे पूछते हैं, सर आप फिर सॉफ्टवेयर फिनटेक में नहीं लगाओगे क्या? है, मेरा एक्सपोजर भी है। सो आज की तारीख में टोटल पोर्टफोलियो में सॉफ्टवेयर फिनटेक इज़ क्लोज टू बिटवीन 15 to 20% है मेरे पास। बट जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर फिनटेक को मैंने पैसा दिया है, पहले वो स्टार्टअप नहीं है, ग्रोन अप है, एटलीस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू है। नरेंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट पैट पॉजिटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन दोनों कंपनी के पास जितना ये साल का रेवेन्यू उसका 3 times तो ऑर्डर बुक है।
सो यहाँ से गाड़ी डिरेल नहीं हो सकती है। तो आपको ये चेक मार्क करना है, ठीक है उसके पास एसेट्स नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या एसेट्स रहते हैं, आपके लैन वायर और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का तो रिकवरी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इतनी आती नहीं है। बट इन एक्सचेंज ऑफ क्या है, एसेट बैक नहीं है तो ऑर्डर्स इन हैंड होनी चाहिए। तो ये आप देखोगे ना, तो वहाँ पे अगेन आप पूरा थॉट प्रोसेस देखोगे ना, इट्स ऑन मिनिमाइजिंग द रिस्क। लोअर डाउन द रिस्क इज ऑलवेज गुड फॉर यू, वो हमने हमेशा देखा है। सो जो आपके सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक सीरीज 1 is 500 crores, series 2 is around 1500 crores, 2000 2000 crores, series 3 is again 2500 Correct. Nearby, and series 4 is 4000 crores. So we've seen a constant upward trajectory in your funds, in your AIF CAT 2, that's Bharat Value Fund. Okay, तो क्या हम ये सेफली माने कि जितने भी कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल सीरीज 1 में आपने 12 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, सीरीज 2 में अगेन 12 में किया, सीरीज 3 में अभी 2 कंपनीज में किया है, सीरीज 4 यू जस्ट स्टार्टेड, या क्या ये सारी कंपनीज में जो आपने पैरामीटर्स बताए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं? यस, अब देख लो सकते हो कि मैक्सिमम कंपनीज में अगेन मेरे ना एक 6 या 7, मतलब मैंने आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताया, एक 6 या 7 सिलेक्शन पैरामीटर्स के ऊपर हम हमेशा काम करते हैं। एंड आई ऑलवेज टेल माई इन्वेस्टर्स कि ये मेरे 7 या 8 सिलेक्शन पैरामीटर्स हैं, आई इंटेंड टू फॉलो 70% ऑफ देम। क्या क्या है, वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला IPO कन्विक्शन, एक तो मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वहाँ से आता है कि कौन सी कंपनी का आएगा, क्या क्रेडेंशियल है। एंड सेकंड, एज ए सेड दैट नॉन नेगोशिएबल क्लॉज कि सर आज ही एग्री कर लो कितने महीने में IPO करना है। सेकंड, हमने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसेस को पैसा दिया है, आपको दूसरे इन्वेस्टर को बेचना है, जो दिखता है वो बिकता है। तीसरा, रीजनल ब्रांड ग्रोइंग टू नेशनल ब्रांड। ऑलवेज से कि फंड मैनेजमेंट में पैसा कमाना है, नीचे एंट्री मारो। हम सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, नरेंद्र आप सेलिब्रिटी को फॉलो करो, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, बट इनवेरिएबली आप सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो तो आप वो चीज़ महंगे में खरीद रहे हो, आप प्रीमियम पे कर रहे हो। यू एंटर बिफोर द सेलिब्रिटी एंड सेलिब्रिटी आपके बाद में आता है। आज मेरी इन्वेस्टिंग कंपनी में आप देखोगे, जब मैं एंटर कर रहा हूँ मैंने सेलिब्रिटी का प्रीमियम नहीं भरा है, बट जब एग्जिट करूँगा तो सेलिब्रिटी का प्रीमियम मिलेगा। एंटर लो। चौथा पॉइंट है इंटेंट ऑफ द प्रमोटर, गाड़ी वहाँ पे आपकी कितनी लंबी जानी है ना, वो बेसिकली इंटेंट ऑफ द प्रमोटर। पांचवा पॉइंट है ग्रोथ कैपिटल, भले लिक्विडिटी सकआउट हो गई, ऊपर नीचे हो गई, बिकॉज इट इज़ मार्केट ड्रिवन, बैलेंस शीट साइज इंक्रीज होने दो। 6th पॉइंट है इज़ वैल्यू आर्बिट्राज। आज मार्केट रीजनेबली वेल करेक्टेड है बिकॉज ऑफ दैट वॉर। आज बहुत सारे मेरे इन्वेस्टिंग कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स, उनके रेवेन्यू मल्टीपल, P मल्टीपल गिर चुके हैं। आज भी लिस्टेड के जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके P मल्टीपल देखें और मेरे एंट्री लेवल P मल्टीपल या रेवेन्यू मल्टीपल देखें, नरेंद्र आपको नीचे एंट्री मिलेगी। एंटर लो इज़ द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन फंड मैनेजमेंट। चेक कैश बर्न, 7th पॉइंट इज चेक कैश बर्न। एंड 8th पॉइंट इज़ आप इसको टोटल लॉन्ग रनवे में धंधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको देखो। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो हम बोलते हैं, बिकॉज द यंगेस्ट कंपनी इन माई पोर्टफोलियो वुड बी 13 years old। नरेंद्र वेरी सिंपल, मैं मेरे इन्वेस्टर्स को हमेशा बोलता हूँ, आई इंटेंड टू फॉलो मोर देन 70% ऑफ दिस क्रेडेंशियल्स। 100% करोगे तो लाइफ में डील होगी नहीं। एंड दो आई हैव एंडेड अप फॉलोइंग इन माई पर्सनल ओपिनियन, वी हैव एंडेड अप फॉलोइंग मोर देन 87 to 88% ऑफ द क्रेडेंशियल, बट इंटेंड टू फॉलो 70%, बिकॉज ये लॉस अवॉइड करने की स्ट्रैटेजी है सर। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, किताबों में ये लिखा है ना सर। So, Nishad, seeing the changing scenario, okay, when we look at AI ने पिछले 2 साल में completely rules of the game change कर दिए, rules of business change कर दिए. Okay, now when we look at the AI companies, they had cash burn. They were not asset-backed companies. Okay, they did not have positive PAT, but they were running after something that was not known to the world. Okay. Now you're saying that you are 15%, 20% inclined towards softwares and fintech companies. That's fine. But do you see that there is Anthropic sitting in India in a garage today? Or do you see a Meta sitting in a small town which is just waiting for that breakout, or which is just waiting for that explosion to happen? If that happens in India, if something like Anthropic happens to India, will you not feel that you've kind of missed the bus? So Anthropic, Naren, again, there are various themes that you follow. So there are dedicated fund managers who have this particular theme only. So
आई एम नॉट हियर टू से वेदर दैट थीम इज राइट और रॉन्ग, बट मेरा थीम अलग है. I want to follow the traditional assets because there probably I have seen a better way of making the money. Because मेरा पॉलिसी एक है सर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लोग बोलते हैं. माई पॉलिसी इज लोअर डाउन द रिस्क, यू टेंड टू मेक मनी ऑन लॉ ऑफ एवरेजेस. क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, पुराना क्रिकेट देखिए सर, बेचारा तेंदुलकर सेंचुरी मारता था एंड बाकी सब प्लेयर 10 रन 20 रन इंडिया 200 पे ऑल आउट हो जाती थी. आजकल कोई सेंचुरी नहीं मारते. ईच प्लेयर प्लेस, दैट्स वेयर यू टेंड टू विन. सो ईच कंपनी इफ यू स्टार्ट्स गिविंग 20% 25% rather than वन कंपनी गिविंग यू 10x एंड बाकी 8-9 आपकी फेल जाती है, वो स्ट्रैटेजी से अच्छा आई वुड प्रीफर ईच कंपनी गिविंग यू अ रिलेटिवली बेटर रिटर्न. तो वहाँ पे ये स्ट्रैटेजी जो आपकी है ना मेटावर्स वाली, वो शायद इतनी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी. दैट्स वाई आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, बिकॉज माई प्रोडक्ट इज़ मिनिमाइजिंग द रिस्क एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क. वहाँ पे इसीलिए मेरा 80-85% आज तक का जो फोकस है वो एसेट बैक की तरफ है, बिकॉज वहाँ पे एक रिस्क काफ़ी हद तक आप मिटिगेट कर सकते हो. ये मेरा ओपिनियन, आई एम श्योर यू वुड एग्री विद दिस. फेयर इनफ, आई टोटली एग्री विद इट कि जितना जो हमें पता है हम उस पे बेट करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी फेयर कॉल. ओके, बट लेकिन ये जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ओके, हम लोग फाइनेंशियल मार्केट से हैं, तो हमेशा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट आपने कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को चेंज किया टू लो रिस्क high reward. Okay, want to understand your mindset on this. When I look at IPOs, okay, 373 IPOs in a year. Yeah. 60% of them are trading below their listing price today. Okay, how many of the unlisted companies did not see the day, did not see that light of the day because they were not able to reach the IPO stage. Okay. आप ऑलरेडी एक हाई रिस्क एरिना में बैठे हैं, आप ऑलरेडी एक वॉर जोन में बैठे हैं, ठीक है. सो इट्स लाइक सेइंग दैट कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर से शिप लेके जाऊंगा और मेरे पास लो रिस्क है. सो हाउ कैन यू क्लेम दैट इट इज़ अ लो रिस्क गेम? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मैंने आंसर दे दिया. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में यदि आपका ईरान के साथ फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, जो प्रमोटर है, तो आप निकल सकते हो सर. तो अल्टीमेटली गेम वो प्रमोटर के ऊपर आता है. नरेंद्र देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें. आप मैंने आपको जो 6-7 क्रेडेंशियल दिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फेलियर की बात करते हैं, बट क्यों फेलियर हो गया. जो मैंने आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपने जो मुझे क्रेडेंशियल पूछे, एंट्री पैरामीटर, आप ये एंट्री पैरामीटर पे जो IPO फेल गए आपके, सर आप उनके वेट डाल के देखो, आपको नहीं 70% मार्क मिलेंगे. और जहाँ आपको 60-70% के ऊपर मार्क मिलते हैं ना, इनवेरेबली नरेंद्र वहाँ पे 3-4 महीना ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन लाइक दिस, बट उसके आगे फेलियर्स नहीं मिलते हैं. सो ये अल्टीमेटली अगेन यू कम बैक टू द सिलेक्शन पैरामीटर्स के इश्यूज जो है ना, उसके ऊपर ही एड्रेस को. प्रमोटर खुद भाग रहा है सर, प्रमोटर खुद अपना बेच रहे हैं, और नरेंद्र आप पैसा डालोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत तो आनी है. अब बैक टू बैक वो एक पहली राउंड 1,000 करोड़ रुपये हो गई, दूसरी 2,000 रुपये हो गई, तीसरी 3,000 करोड़ रुपये हो रही है. अरे कंपनी की बैलेंस शीट साइज ही नहीं बढ़ रही है, वो पैट उतना का उतना है, एंड जस्ट बिकॉज देयर इज अ लिक्विडिटी आप 4,000 पे चौथी राउंड कर रहे हो, एंड देन नरेंद्र आप बोलोगे अरे IPO नहीं है. तो नरेंद्र तो फिर बेसिक फंडामेंटल तो जो पहले 3 पॉइंट मैंने आपको बताएं एंड 7 सिलेक्शन पैरामीटर्स बताएं, नरेंद्र वहाँ पे वेट करो. आप यदि उसको वेट डालोगे ना, तो अगेन तो हम लो रिस्क एरिया में पहुंच जाते हैं. पहुँच सकते हो, आराम से पहुँच सकते हो, पहुँच सकते हो. Fair enough. I take your point on that. Okay, लेकिन मैं अभी let's be a little honest and let's come to the other side of the story. Okay, जब हम इस CAT 2 के मार्केट को देखते हैं या प्री IPO मार्केट को देखते हैं, okay, 75% of AIFs are giving positive alpha. So that's a very big green signal for us as investors. Okay, but at the same time हम देखते हैं that SEBI is tightening the norms. Okay, promoters, they are getting cold feet when they are just about to get into the IPO stage. Okay, sectoral re-rating हो जाती है. For example, pharma was brilliant at 2022, but now suddenly the pharma as a sector is not performing that much. Yeah, so sectoral re-rating करके या the other external factors, IPO listing going bad, too many IPOs coming in, all these are the parameters that will either defer your IPO or they will simply go away from the IPOs. Okay, इस समय we as investors, we have already invested, we are waiting for the 3 years. So how do you safeguard our interest?
आपके पास क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है कि मेरा पैसा वापस सेफ आ जाए या पॉजिटिव अल्फा दे के आ जाए? नरेंद्र, आपका जो क्वेश्चन है ना, वो मैं एक मार्केट पर्सपेक्टिव से आंसर देना चाहूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपने मार्केट की भाषा बात की है। आप एक बार बोल के गए कि सो मेनी IPOs की, मेरा पर्सनल एनालिसिस सब्जेक्ट टू नंबर्स बीइंग करेक्ट, आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर महीने की 1 तारीख को 30,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, बराबर है। सभी म्यूचुअल फंड की बैलेंस शीट खुल के देखिए, जितने म्यूचुअल फंड है। अल्टीमेटली देखने के लिए 7,000 लिस्टेड कंपनी है, बट लगा रहे 400 या 450 कंपनी में उतना ही इनका स्पेक्ट्रम है। सर, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिमांड सप्लाई। सप्लाई 30,000 करोड़, जो किसी भी हालत में कम नहीं होना है। अगले 2 साल में 30,000 का 40,000 हो सकता है, पर 25 तो नहीं होगा सर। तो वो सप्लाई वापस घुमा फिरा के उसी 400 कंपनी में जा रहे हैं। तो नीचे से जितना जितना कंपनी आएगा, तभी तो इंडिया का P मल्टीपल बढ़ रहा है, बिकॉज वो 30,000 करोड़ 400 कंपनी में जाएगा, तो बार बार उसी कंपनी में जाने से इंडिया का P मल्टीपल बढ़ रहा है। पॉइंट है, सप्लाई 30,000 करोड़, डिमांड है नए IPOs। सो दैट इज़ द रीज़न। सो यू कैन कॉल इट दिस इज IPO इज अ फूड फॉर म्यूचुअल फंड। आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करनी है, जो अल्टीमेटली पूरे देश का गोल है। आज पूरी की पूरी क्रिकेट टीम म्यूचुअल फंड बेच रही है सर। म्यूचुअल फंड इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यदि ग्रो करनी है तो वो इंडस्ट्री स्टैंड अलोन ग्रो नहीं हो सकती है। आपको नीचे से जो अनलिस्टेड मार्केट है, विच इज़ प्रोबेबली 100 टाइम्स बिगर दैन द लिस्टेड मार्केट, वहाँ पे जो अनरेगुलेटेड कंपनी है उनको एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में लाके IPO की बेंचमार्क पास करवानी ही पड़ेगी। सो दैट्स लाइक तभी तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगी। सो वो मेरा कहना है कि क्यों नंबर ऑफ IPOs ज़्यादा आ रहे हैं, वो मैंने आपका आंसर दे दिया। सेकंड आपका अबाउट द मार्केट सिनारियोस, देखिए साइकिल जो चेंज हो रहे हैं ना नरेंद्र, बहुत सारे लोग वहाँ पे थोड़े डरते हैं। मेरा लोगों को एक ही कहना है सर, साइकिल्स विल कम एंड गो। कोई फंड मैनेजर आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ साइकिल नहीं पकड़ सकता है सर। वो एक गेस कर सकता है। आज प्रोबेबली कोरोना वॉज द वर्स्ट इवेंट इन द ह्यूमन मैनकाइंड नरेंद्र, कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, और भी बहुत है। 2008 भी था, 2000.com भी था, 1992 हर्षद मेहता भी था। सर, कोरोना में क्या हम 11 महीने में बैक टू नॉर्मल नहीं थे? थे। चलो आप बोलोगे कोरोना गया। लास्ट 4 साल में क्या क्या नहीं हो गया? रशिया में वॉर हो गया, गाजा में बम फट गए, देन आई थिंक ईरान के ऊपर सैंक्शंस आ गए, इंडिया और US का ट्रेड वॉर जो हो गया। सर, इकोनॉमी अप एंड डाउन हुई, बट बिकॉज द बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, थ्रू आउट 5-6 महीने इंडियन इकोनॉमी डाउन थी सर? नहीं थी। आप मुझे बोलो, हाँ निशाद लास्ट 9 महीने में ये पीरियड में एक भी IPO नहीं है, हो ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज द बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, दिस इज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। सर, पैनिक नहीं होना है। सबसे पहला, साइकिल्स विल कम एंड गो। पॉइंट नंबर 1, हैव अ फेथ इन द इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, क्रिएट डेल्टा ऑन द डेट ऑफ एंट्री। आपका पैसा फंड मैनेजमेंट में एग्जिट के दिन नहीं कमाया जाता सर, पैसा एंट्री पे कमाना है। एंड तीसरा, कीप योर कंपनी वेल कंप्लाइड। सर, ये 3 क्रेडेंशियल पे ऊपर आप खेलोगे ना, अगेन 4-5 महीना डिले AIF इंडस्ट्री में आसानी से हो सकता है, बट आप यदि 3 क्रेडेंशियल पे खेले हो, आपका कंपनी का नीचे एंट्री है, कंपनी वेल कंप्लाइड है, सर फिर एग्जिट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो ये मेरा एक बट point निशाद, माय पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट भारत वैल्यू फंड, ओके, हमने एज अ इन्वेस्टर आपको फंड अपना दे दिया, ठीक है, और आप इन सारे क्रेडेंशियल्स पे खेल रहे हैं, राइट? अब आफ्टर 3 years, 4 years, you understand that there is a problem with a particular company, not maybe the entire portfolio, Correct. but a particular company. तो उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी में हमारा सेफ्टी मेजर क्या है? ओके, आई गॉट योर। या तो चलो लेट्स कॉल अबाउट द एक्सट्रीम वर्स्ट। Extreme worst, yes. जिसको Correct. मे डे इवेंट बोला जाता है। यस, एब्सोल्युटली। सो देखो, मे डे इवेंट आ सकते हैं विद द गॉड्स फॉर्चून, गॉड विलिंग। आज तक मेरे फंड में अभी तक वो आया नहीं है, बट जिस दिन मे डे इवेंट आता है ना नरेंद्र, किसी की भी लाइफ में नहीं आना चाहिए, बट एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपका पोर्टफोलियो का कितना % वहाँ पे है। आपके पहले क्वेश्चन में आपने पूछा ना, PMS म्यूचुअल फंड AIF, मैंने क्या बोला? वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। एक हमने एक पॉलिसी बनाई है, 2 रेगुलेटर्स बोलते हैं कि एक कंपनी में यू कैनॉट इन्वेस्ट मोर देन 25% ऑफ द कॉर्पस, बट हमारी एक इंटरनल पॉलिसी है कि कितनी भी अच्छी कंपनी हो, एक कंपनी को 10 या 12% ऑफ द कॉर्पस के ऊपर मत दो। तो भले मे डे इवेंट आ गया, बाकी का 88% तो आपको कमा के दे सकते हैं। एंड एक सेक्टर को 20% के ऊपर मत दो। सो आज की तारीख में मेरा लार्जेस्ट एक्सपोजर है, नीडलेस टू से, फूड एंड एग्रो में। वो तो ऑब्वियस है, बिकॉज द वे इंडिया ग्रोइंग, एंड दैट इज क्लोज टू
16 to 17%. सो एक कंपनी को 10 से 12% ऑफ द कॉर्पस के ऊपर मत दो, एक सेक्टर को 20% के ऊपर मत दो. नरेंद्र, वर्स्ट केस आपने जो बोला मेड इवेंट आ गया, योर 90% स्टिल सेफ. वो मैं करता हूँ. सेकंड पॉइंट, मेड ए अवॉइड करने के लिए. तो अभी तक तो मैंने जो बोला उसके आगे और एक है सर. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भारत वैल्यू फंड इज़ अ वन डायमेंशनल फंड जो सिर्फ आईपीओ जानता है. हाँ, ये लोग सोचते हैं बिकॉज पेंटोमैथ का एक बैकग्राउंड है आईपीओ का, उसकी वजह से सोचते हैं, जो गलत नहीं है बिकॉज पेंटोमैथ हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इज सुप्रीमेसी इन द आईपीओ. बट आप मेरे सीरीज़ 1 के ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी उतना ही स्ट्रांग है. सो अनलिस्टेड टू अनलिस्टेड एग्जिट, लिस्टेड टू अनलिस्टेड शेयर स्वैप, एंकर इन्वेस्टमेंट में जाके अच्छी रिटर्न देना. These also are the equal amount of liquidity events, Naren, I have created in addition to the supremacy or the IPO. ये भी हमने दिखाया हुआ है. So again 360 डिग्री नहीं है सर, 360 डिग्री है ये पूरा. It's not only IPO. IPO गया तो सेकंड थर्ड प्लान भी हमारे पास ऑलरेडी वर्क में रहता है. सो उससे से मेड ए, दैट इज़ द रीज़न, प्लस ड्यू डिलीजेंस अल्टीमेटली. देखिए, मैं किसी अतरंग सेक्टर को पैसा तो नहीं दिया, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स को दिया है जो इतनी ईजिली बंद नहीं हो जाएगी, फूड एंड एग्रो को दिया है, टेली इंफ्रा को दिया है. इस सेक्टर से ओवरनाइट बंद होने वाले नहीं हैं. सो वो एक प्लस डाइवर्सिफिकेशन. सो मल्टीपल वे में आप पूरा मेरा प्रेजेंटेशन सुनोगे तो अल्टीमेटली मैं वो एक ही बिंदु को हिट कर रहा हूँ बार बार, वो है रिस्क मिटिगेशन. Oh, is there any kind of a exit clause that comes into play from a particular company that you're holding while they are in the IPO stage, or maybe you're seeing that now the IPO is not going to happen, or it is going to happen a little later than what you expect? तो एक मल्टीपल वे हम लोग क्रिएट करते हैं. शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होता है, किसी भी कंपनी को हम पैसा देते हैं ना नरेंद्र, तो एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होता है. उसमें एक पहला क्लॉज रहता है कि ऑफकोर्स पर्टिकुलर पीरियड में जो टेक्निकली 30 to 36 मंथ में आपको आईपीओ को जाना है. दूसरा क्लॉज हम हमेशा डालते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में है भी हमारा, वो है ओएफएस. मतलब जो आईपीओ को निकलते हैं ना ओएफएस. सो वी हैव क्रिएटेड कि आई हैव अ राइट टू गेट आउट ऑन ओएफएस बट नॉट एन ऑब्लिगेशन. तो ओएफएस को निकलने का राइट हम हमेशा रखते हैं ताकि पोस्ट आईपीओ, जो आपने आपके क्वेश्चन में पूछा, पोस्ट आईपीओ अनसर्टेनिटी अवॉइड करने के लिए हम ओएफएस का क्लॉज भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं. OFS is offer for sale. ऑफर फॉर सेल. मतलब आईपीओ को जब आप अंदर आते हो तो सेकेंडरी में जो निकलता है उसको ओएफएस बोला जाता है. वो नहीं आया तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लान सी इज़ मल्टीपल वे ऑफ एग्जिट, लाइक प्राइवेट इक्विटी सेल, सेकेंडरी सेल, वो भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं. ऑफकोर्स बायबैक्स आर ऑलवेज देयर. पर लोग बायबैक के ऊपर मेरे को बार बार पूछते हैं, क्या प्रमोटर बायबैक करेगा, क्या प्रमोटर बायबैक करेगा. क्या, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस से है. जो प्रमोटर के पास 5-10% इक्विटी है ना, वो आपको देखो, हर प्राइवेट इक्विटी में बायबैक का क्लॉज होता है. दैट इज़ अल्टीमेटम. जो प्रमोटर के पास 5-10% स्टेक है नरेंद्र, वो कभी लाइफ में बायबैक नहीं कर सकते. तो बायबैक का क्लॉज डाल के भी वहाँ पे फ़ायदा नहीं है. और जो प्रमोटर सब्सटेंशियल स्टेक है, लंबा खेलना ना, वो आपको बायबैक ट्रिगर करवाने नहीं देता है. वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट ट्रेड देता है बिकॉज उसको लंबा खेलना है, उसको अपना नाम खराब नहीं करना है. इसीलिए वापस बता रहा हूँ, अटैक प्रमोटर के ऊपर करो, उसके माइंडसेट के ऊपर करो, उसका लंबा विजन है तो उसके पीछे भागो. वो ब्रिलियंट. वो point है, आई थिंक ये आपकी जो फिलॉसफी है वो भारत वैल्यू फंड के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्ले आउट कर रही है. एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सीरीज 4 नाउ कमिंग इन, एंड काइंड ऑफ 8,000 crores where you said it is just about $1 billion. अगर रुपये इतना डेप्रिशिएट नहीं कर रहा तो वो $1 billion ही था. Okay. So coming to our regulator, okay. So how I see SEBI has played out brilliantly well when we talk about mutual funds, the PMS or the AIFs, where they've gotten the trust, they have gotten the kind of reliability, the transparency that is required. For example, उन्होंने AIF को benchmarking कर दिया, okay. उन्होंने NAV reporting AIF में शुरू कर दिया. डीमटेरियलाइजेशन ऑफ AIF इन्वेस्टमेंट्स कर दिया. अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन कर दिया. इवन इफ यू आर अ स्मॉलर AIF और अ बिगर AIF कर दिया. ठीक है. सो इस तरह के बहुत सारे नॉर्म्स, एंड एवरी डे दे आर गेटिंग दीज नॉर्म्स इन प्लेस. या ऑफ कोर्स इट्स समटाइम्स अ पेन फॉर यू एज अ फंड मैनेजर टू हैव सो मेनी कंप्लायंसेस टू डू, बट आई थिंक दिस इवेंचुअली इट प्लेज आउट पॉजिटिवली फॉर, बिकॉज उस उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. राइट. सो आई वॉन्ट टू हैव योर माइंड कि सेबी के कौन से नॉर्म से आपको एज अ AIF या इन्वेस्टर को एज अ AIF इन्वेस्टर
मैक्सिमम बेनिफिट हुआ, या आपने कहा दिस इज द गेम चेंजिंग नॉर्म? नरेन, आई थिंक रेगुलेटर्स हैव प्लेड अ फैंटास्टिक गेम बिकॉज स्पेशली जब हम देखो, आप इंडिया में रहते हो, आपको बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा अवेयरनेस है। स्पेशली हमारे फंड में बहुत फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं एंड वो एक क्वेश्चन हमें बार बार पूछते हैं कि एफ इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की है, आज तक स्कैम कितने हो गए एज ए इंडस्ट्री? हमारा आंसर है नन, नन, नन। None. And same goes for mutual funds? Absolutely. Same goes Absolutely. for PMS? It's a shock of their life. कि ऐसे कैसे हो सकता है? आंसर जाता है जिस तरह से जो स्कीम बनाई है ना रेगुलेटर्स ने, तो क्रेडिट तो उनको जाता है। क्लासिक बता देता हूँ, जिस दिन से आई थिंक 2 years ago दे गॉट द रूल, पहले पेपर यूनिट होते थे बहुत साल, 2-3 साल पहले, जब से डीमैट में यूनिट चालू किया ना नरेंद्र, तब से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का बढ़ चुका है कि हाँ मेरे यूनिट मेरे डीमैट में दिखते हैं, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा, आरटी एजेंट जो हमारे किसमें कैंप्स है, तो यूनिट इश्यूएंस यहाँ पे टेक्निकली ये फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आरटी एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको एक्सेस दिया गया बैंक का, जिसको एग्रीमेंट्स का एक्सेस है। ही नोस कि नरेंद्र ने कितना पैसा दिया, से नरेंद्र ने 20 लाख रुपया दिया, निषाद ने 20 लाख रुपये दिया, तो नरेंद्र को भी 20 यूनिट जाएंगे, निषाद को भी 20 लाख यूनिट जाएंगे। एंड वो जो ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन की ना सर, अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ ग्रो होने के लिए, लोग बोलते हैं रेगुलेशन, मैं बोलता हूँ रेगुलेशन तो है ही अपने आप में, बट ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रेगुलेशन जब लोग देखते हैं ना, तब वहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हैं। एंड आई थिंक रेगुलेटर्स डिजर्व all the credit for this And a round of particular- applause for of them. course, of course, needless to say, needless So to say. I think now it's the right time to say mutual fund सही है, PMS सही है, और AIF भी सही है. तो am I allowed to change a little bit? Yeah, sure. तो मैं मेरे जो क्लासिक इन्वेस्टर्स है वो मुझे पूछते हैं सर हमारा, या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो भी पूछते हैं सर हमारा म्यूचुअल फंड में हमें अच्छा मिल रहा है, हम एआईएफ में क्यों है? मेरा सिंपल आंसर है, म्यूचुअल फंड तो सही है, नो डाउट अबाउट इट, बट क्या बस वही है? उसके आगे भी है सर। मैं आपको बताता हूँ, आप, दिस इज़ फॉर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स, देखो एआईएफ सीख लो, नहीं तो अननेसेसरी इन्वेस्टर दूसरी जगह चला जाता है। हमें भी कभी कभी बुरा लगता है, दो आई एम नॉट अ वेल्थ मैनेजर, आई एम अ फंड मैनेजर, बट वो बहुत बार मैं देखता हूँ एक अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स का इन्वेस्टर वो डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू नहीं आता है, किसी और थ्रू आता है, जस्ट बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटर को एआईएफ का अवेयरनेस नहीं है। तो एज अ फंड मैनेजर हमें भी बुरा लगता है कि, तो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम देने के लिए बैठे सर, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, But I think it's a brilliant tagline. Mutual fund सही है, क्या बस वही है. It is not registered anywhere. So. Okay, that's great. Okay, so now talking about your very different venture that you've just went into in Bharat Value Fund, and that is fund of funds. हाँ. Okay, fund of funds अगर को हम उसको globally study करें तो it's approximately $1.5 trillion market. Okay, well established, and people are again the transparency, reliability is there. But जब हम fund of funds की बात करते हैं for India, it's a fairly a new concept. Correct. Whether it's tried and tested, yes, it's just in that initial stage of testing, right? So we want to understand कि आपका ये fund of funds, what is the parameter? How आप इस पे कैसे आए? So जितना मैं जानता हूँ as fund of funds is कि अगर मैं AIF में 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, तो in one bucket, it is getting invested into one particular AIF strategy. Correct. Right? In fund of funds, I am investing in that same 1 crore is getting invested into multiple strategies. Correct. Probably multiple fund managers. Correct. And probably multiple timelines. Correct. Is that correct? Correct. Yeah. So, what was your intent of getting into fund of funds when you know that it's not a proven kind of a market in India? हमारा एक छोटा सा पॉइंट आता है नरेंद्र कि एआईएफ की एक स्कीम में 999 इन्वेस्टर्स ही अलाउ होते हैं। अनलाइक म्यूचुअल फंड में आप कितने भी ले सकते हो, एआईएफ में 999 इन्वेस्टर्स ही आते हैं। तो कभी कभी किसी स्कीम में अभी 2500 करोड़ का फंड है, तो टिकट साइज ही 2.5 करोड़ की होगी। तो कभी कभी अनविलिंगली हम लोग कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम 1 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं हु आर विलिंग टू गिव अस 1 करोड़, वो हम कभी कभी वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू ऑन बोर्ड देम। ये हमारे साथ हो चुका है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो AUM अचीव करना है, तो बड़े इन्वेस्टर्स को कभी कभी प्रेफरेंस दिया जाता है।
विच वॉज नॉट हैपनिंग इन अ राइट वे. ये हमारा इंटरनली एक डिस्कशन था. सो दैट पुश्ड अस कि कैसे हम ये इन्वेस्टर्स को एकोमोडेट करें, बिकॉज एवरी इन्वेस्टर इज ए इन्वेस्टर सर. आज मेरे फंड में इफ एम क्लोज टू 3,350 इन्वेस्टर्स है विद द मिनिमम टिकट साइज ऑफ 1 करोड़, उसके ऊपर के. तो ये इन्वेस्टर बेस बढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो हमने सोचा क्यों ना हम फंड ऑफ फंड डालें, ताकि ये 1,500 करोड़ का फंड है, ताकि 1 करोड़ का टिकट रहे. एंड ये 1 करोड़ में आपको जो मेरे ही सीरीज़ के जो फंड है वो मैं आपको दूँ, तो आपका एक तो चीज़ हो जाएगा कि जो बाकी के सीरीज़ में जो हायर टिकट्स हैं वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है. तो आप फंड ऑफ फंड में 1 करोड़ दो. आपको मैं फंड ऑफ फंड में मैं कोई बाहर के फंड तो देने वाला हूँ नहीं, मेरे ही, क्योंकि आज मैंने सक्सेसफुली 1 2 3 4 सीरीज़ तो चलाई, मेरे ही जो प्रॉबेबली सीरीज़ 3 है या सीरीज़ 4 है उसमें फंड ऑफ फंड ने ऑलरेडी एंट्री लेके रखी है. तो फंड ऑफ फंड से आपको सीरीज़ 3 सीरीज़ 4 मिलेगी. एक फंड ऑफ फंड का प्रॉब्लम यूनिवर्सली जो मैंने देखा है, तो आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इंडिया में भी देखा है, यूनिवर्सली भी देखा है, फंड ऑफ फंड डबल फी लगाते हैं. बिकॉज वो फंड ऑफ फंड जो चला रहा है वो अपनी फ़ी लगाएगा, और वो फंड ऑफ फंड किसी दूसरे फंड मैनेजर को देगा, वो अपनी फ़ी लगाएगा, ऊपर 2%, नीचे 2%. सर मेरे फंड ऑफ फंड में आपको डबल फी ड्रैग नहीं है, क्योंकि वो दूसरे दोनों फंड मेरे हैं. मैं 2 जगह 2% 4% नहीं लगाने वाला. ऊपर 2% है, नीचे 0 नहीं है, 0.05 5 पैसा है. सो वो भी मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. मोस्ट ऑफ द फंड ऑफ फंड नीचे वाले फंड को जो पैसा देते हैं वो फंड 8 साल का है, तो फंड ऑफ फंड अपना टेन्योर 9 साल का कर देता है. मेरा फंड ऑफ फंड 5.5 साल का ही है. सो एक लोअर टेन्योर मैंने इस प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. दूसरा प्रॉब्लम डबल फी ड्रैग जो लोगों को होता है, डबल फी भी लगती है, डबल कैरी भी लगते हैं. नो डबल फी, नो डबल कैरी, वो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. तीसरा पॉइंट है कि आपको एक शॉर्टर टेन्योर की वजह से एक ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है, बिकॉज सीरीज़ 3 सीरीज़ 4 के ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं, तो आपको एसेट दिखती है कहाँ कहाँ पैसा लगा है, प्लस 1 करोड़ के टिकट है. तो ये एक मल्टीपल प्रॉब्लम हमने इन्वेस्टर्स के सपोर्ट के लिए हमने ये चालू किया. बिकॉज एज ए सेड कि हमारा अल्टीमेटली इंटेंशन रहता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन और अवेयरनेस. वहाँ पे इन्वेस्टर्स सीख के आ जाते हैं हमारे पास, और हम 1 करोड़ ना बोल देते. तो वो किधर, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से नरेंद्र ये बेस्ट सोल्यूशन था. तो वो फंड ऑफ फंड हमारा चालू हो चुका है, एंड दैट वाज द होल लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग द ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो और हमारा भी. So I think it's a win-win situation for the fund manager and the fund and the investor. जहाँ पे वो एक टिकट साइज की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे probably they can invest now, and when they've already seen कि series 3 is working in the right direction, but they have missed that bus, they can onboard that bus again. Okay, I think that's a wonderful proposition. Okay, so when we talk about global investors, NRIs, okay, international family offices, कितने, आपको क्या लगता है कि कितने लोग हैं जो आपके, what is the percentage of these people investing in your Cat 2? नरेंद्र, मेरे फंड में टोटल यदि मैं बता दूं इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो मेरे इंटरनेशनल फंड भी है, फीडर फंड जिसको हम बोलते हैं. तो सीरीज़ 2 जो हमारी थी उसका फीडर फंड VCC स्ट्रक्चर में सिंगापुर में था. सीरीज़ 3 का फीडर फंड गिफ्ट सिटी में है. सीरीज़ 4 का वापस सिंगापुर में है. सो टोटल AUM में प्लस बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैव डायरेक्टली ऑनबोर्डेड इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज पैन और डीमैट है तो वो इंडिया में डायरेक्टली आ रहे हैं. सो मेरे फंड में 15% के ऊपर 15 से 17% इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर रह चुका है. बिकॉज वो अवेयरनेस है, दे नो कि इंडिया में पैसा बनता है सर, जहाँ पैसा बनता है वहाँ आना है, तो है. और पैन और डीमैट है, आई वुड से डायरेक्टली कम टू इंडिया, देन इंडिया इज़ द बेटर, बिकॉज विदाउट डीमैट ऑन बोर्डिंग इज़ हाईली इम्पॉसिबल. बट देन ऑफकोर्स इफ़ यू आर बेटर एक्सपोजर इन सिंगापुर से आपको रोड से आना है तो आप सिंगापुर रोड से भी आ सकते हो. मैंने अभी वी कैन ऑल्सो ऑन बोर्ड US इन्वेस्टर्स, बिकॉज US इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड करने के लिए आपको DTA का बेनिफिट लेना है, तो आपको K1 देना पड़ता है. सो नाउ मैं सिंगापुर फंड कैन गिव यू द K1 ऑल्सो. तो वो एक बेनिफिट मिलता है ताकि आपको डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस का एग्रीमेंट का आपको बेनिफिट मिल सकते हैं. आई पर्सनली बिलीव इंटरनेशनल मार्केट इज़ वेरी वेल अवेयर अबाउट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. ज़्यादा इंडिया को बेचना नहीं पड़ता है सर. पीपल नो इंडिया एंड AIFs आर इन अ वेल पोजिशन टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल मनी. प्लस रेगुलेटर्स ने जो सपोर्ट दिया है विथ जीरो फ्रॉड एंड जीरो स्कैम एंड जीरो डिफॉल्ट, तो उसके वजह से इंटरनेशनल फंड्स. So Nishad, according to you, Indian growth story is intact. Okay, and even I feel that. I also
agree to every word of this, okay? But the last 2 years, if we see, okay, the foreign institutional investors are thinking otherwise. They are able to make more money in probably Nasdaq, Dow Jones, Taiwan, Korea, and these markets, you know. And this is why it's kind of draining out all the money from the Indian markets, right? So जो ये इंडियन ग्रोथ स्टोरी आपको दिख रही है, इंडियन ग्रोथ स्टोरी मुझे दिख रही है, ये सेम स्टोरी एफआईआई को क्यों नहीं दिख रही? नरेंद्र देखो, पॉइंट ये है कि व्हाट हम उससे क्या सीख सकते हैं. हमने सीख लिया सर. जैसे हमारे सीरीज 1 2 3 4 में देखो, ये एफआई आते कल आना भी है उनको वापस, अल्टीमेटली डिप्लॉयमेंट करना ही उनको. वो तो आ जाएंगे 100% आ जाएंगे, 100% आ जाएगी. थोड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी ना, 100% आ जाएगी. पॉइंट क्या है, हम क्या सीखे इससे. आज आप मेरे देखोगे तो सीरीज 1 2 3 4 में हमें भी दिख रहा था, बीच में ब्राज़ील मार्केट वाज गिविंग अ बेटर रिटर्न्स, बीच में चाइना मार्केट वाज गिविंग अ बेटर रिटर्न. सो अभी फंड ऑफ फंड में वो सीख के अप टू 20% इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने का हमने अप्रूवल लेके रखा है. देखिए, यू कैन नॉट से कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है. मेरा बेटा तो अच्छा है, बट दूसरा प्लेयर यदि अच्छा खेल रहा है, सो व्हाई नॉट टू गिव हिम 10-15% मनी सर. देन यू हैव टू ट्राई. यू कैन नॉट बी स्टबन. फंड मैनेजमेंट में आप स्टबन नहीं बन सकते हो. ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का थोड़ा बहुत शिफ्ट दिखा हम सब ने, उसके साथ बेटर है चेंज हो जाओ. अल्टीमेटली ओपनिंग स्टेटमेंट मेरा था डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन में कंट्री वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन आता है, एंड विच इज़ लीगली अलाउड. आपके पास म्यूचुअल फंड भी है जो इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सो व्हाई नॉट एएफ. सो हमारे फंड ऑफ फंड में हमको अप टू 20% इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने का हमने अप्रूवल लेके रखा है, एंड प्रोबेबली विल यूज दैट ऑल्सो टू सर्टन एक्सटेंट, इफ नॉट 20%. तो नरेंद्र, वो यू हैव टू इक्विप योर सेल्फ. आज के मार्केट में ना आप ये नहीं बोल सकते मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है. नहीं आता है, सीख लो. आज हमारे पास जब हमने सीरीज़ 1 चालू की थी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, हम इन्वेस्टिंग कंपनी को सिर्फ पैसा दे रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे. वो प्रमोटर आके बोलते धंधा कैसे बढ़े. हमने क्या किया, एआई में पैसा लगाया ना सर. जो आपका वीकनेस है नरेंद्र, पॉइंट ये, इट्स नॉट योर वीकनेस. पॉइंट ये कितना जल्दी आपको वो समझ में आते हैं और कितना जल्दी आपकी एबिलिटी उसको फुलफिल करने की, उतना फास्ट आपके रिटर्न आ जाएंगे. Absolutely correct. And I believe that Bharat Value Fund is on the right trajectory where they are learning from their whatever the pitfalls they are facing in the market, and you constantly growing. We wish you all the best for these funds, and series 4 तक तो हमने देख लिया है. अब series 5, 6, 7 आप कब दिखा रहे हैं हमारे को? Is what my question is. What next do we see in Bharat Value Fund? नहीं, अभी तो फंड ऑफ फंड है. सो सीरीज 5 फॉर द भारत भूमि फंड. इट इज़ नॉट अ इक्विटी रिलेटेड फंड, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट स्पीक अ लॉट अबाउट दैट. तो वो थोड़ा इक्विटी रिलेटेड नहीं है. एंड सीरीज 6 इज़ फंड ऑफ फंड. सो राइट नाउ तो सीरीज 6 ही है सर. तो लेट्स डू जस्टिस विथ व्हाट सीरीज वी हैव स्टार्टेड, बट दैट्स हाउ इट हैज़ बीन. सो एक ही पॉइंट है नरेंद्र, यू नो, धंधा और बंदा देखो, लॉन्ग रनवे वाले प्रमोटर्स को पैसा दो, कंप्लायंस ठीक रहोगा. हमेशा मैं बोलता हूँ आपको कंप्लायंस ठीक करना है, बिकॉज जो अगला इन्वेस्टर आएगा वो आपके कंप्लायंस से सबसे पहले देखता है. कंप्लायंस ठीक रखो. ये बेसिक्स के ऊपर आप अटैक करोगे ना, डिले हो सकती है लेकिन गाड़ी डिरेल नहीं हो सकती है. ये पॉइंट है. Absolutely great, and we wish you all the best, Nishad. It was wonderful talking to you, and I'm sure that our investors and all our viewers who are watching this podcast will take back home a lot of learning about AIF Cat 2, and what's the DNA of this Cat 2, and how does it work? What is the mindset? So you've kind of framed it so well, and I'm sure that. Your Bharat Value Fund and Bharat Bhumi Fund both are going to do very well. Wish you all the best for this, and thank you for joining in the podcast. Thank you, Naren. Thank you. So we've had a wonderful podcast, but would like to say that a small disclaimer that all the things that we have said is for educational purposes, and the viewers, the investors are requested and instructed to please take your own decisions while you're investing